All right, hi everyone. Good evening, Harsh. Good evening, Pratyasha. Hi, Shivang. Hi, Lakshmi. Good evening, Anjali. Hello, Ravi. Good evening, Ratnesh. Good. I'm doing good. Good, Harsh. हाँ, आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. In the meantime, while others are joining, this is based on the concept of diffusion that we studied in the last class. बाकी लोग जब तक ज्वाइन कर रहे हैं, 2-3 मिनट बाद फिर मैं रिज्यूम करता हूँ. All right. कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आ भी गया है. ठीक है, मैं देख के बताता हूँ. मुझे भी एक्चुअली पता नहीं है इसका आंसर एग्जैक्टली क्या है. एक बार देख के बता देता हूँ. I'll just quickly check back and tell. हाँ, इसका करेक्ट आंसर इज 1.41 ATM. राइट. कैसे करेंगे अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना. सो दिस इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन जो हमने लास्ट क्लास में ऑब्जर्व किया था. ठीक है, इस बार मैं इस क्वेश्चन को थोड़े से डिफरेंट अप्रोच से करना चाहूंगा. यू माइट थिंक कि ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया है गिवन मल्टीपल गैसेस हैं. हमने तो लास्ट क्लास में एक ही गैस के साथ में इस क्वेश्चन को करना सीखा था. तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, व्हाट
comes to our help is Dalton's law of partial pressure. ठीक है, एक गैस को दूसरी गैस से कोई फर्क नहीं पड़ता, right? So what we will do is, what we'll work with is the following methodology. Like, we take one gas at a time. ठीक है, for example, let's say CO2 के बारे में बात करेंगे. ठीक है, now for CO2 what will happen is that moles and temperature, they do not change. ठीक है, टोटल मोल्स जो है इसके वो वही रहेंगे, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. जस्ट दैट द गैस विल गो फ्रॉम वन वेसल टू अनदर वेसल. ठीक है, ओनली द वॉल्यूम चेंजेस, एज अ रिजल्ट pressure changes. So I can write P initial V initial is equal to P final V final. So initial pressure is 2.13 atm and initial volume is 1.5 liters. Right? Final pressure is something that we'll have to calculate, and the volume is going to be the sum of all these three volumes, because in तीनों में जाके ये CO2 distribute हो जाएगा once the stop cork is opened. So 1.5 plus 0.86 plus, so not 0.86, 0.86 का pressure है. 1.5 plus 1 plus 1 point or not even 1.5, क्या उल्टा सीधा लिखा हुआ है इसमें. And then third vessel का volume है 2 liters, right? So the volume is the sum of all these three vessels. The CO2 gas is going to distribute in all these three. Volume इसका 1.5 लीटर है, right? इसका 1 लीटर है और इसका 2 लीटर. So as a result, you will get the final partial pressure of CO2 gas. It will be 2.13 into 1.5 upon 4.5 atm. Now you apply the same logic to H2 gas as well. इसके moles and temperatures are not changing. ठीक है, इन तीनों कंटेनर्स में H2 गैस स्प्रेड आउट हो जाएगा, बस उसका वॉल्यूम चेंज होगा. ठीक है, टोटल मोल्स जो रहेंगे ओवरऑल वो टोटल मोल्स तो वही रहेंगे. टेम्परेचर भी सब जगह कुछ बोला नहीं जा रहा है टेम्परेचर के बारे में, तो हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट ही मानेंगे. ठीक है, तो इसके लिए भी P initial V initial will be equal to P final V final. Now initial pressure is given as 0.861 atm. Volume initial is 1 liter. Final pressure आपको निकालना है. Right? This is something that you'll have to calculate. And volume is 1.5 plus 1 plus 2. Right? So ये आ जाएगा आपका 0.861 upon 4.5 atm. ठीक है, and same goes with the last gas, that is argon also. ठीक है, P initial V initial is equal to P final V final, which implies the initial is 1.15, volume 2 liters है, final pressure आपको निकालना है, and final volume 4.5 liters हो गई है. Right? So P final of argon, right? This was P final of H2 gas. This would be 1.15 upon into 2 upon 4.5 atm. So total final pressure will be the sum of partial pressure of each of these gases. So total final pressure of CO2, ठीक है, plus total final pressure of H2 plus total final pressure of argon. Right? तो इन सबका सम हम कर लेते हैं अभी. तो ये आ जाएगा आपका 2.13. ठीक है, अब मैथ्स नहीं कर रहा हूँ मैं, अब मैथ्स करते रहना बैठे बैठे. 1.41 atm आ जाएगा. ठीक है, मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ टू हेल्प यू रिमेंबर what this concept of diffusion was.
I could have done this question via the same approach जो मैंने last class में करा था, ठीक है, in which I distribute the moles and एक equation में moles के लिखता था that sum of the moles is equal to original moles. दूसरा equation फिर मैं partial pressure equate करते हुए लिखूंगा तीनों कंटेनर में. तो इस बार मैं कंटेनर बाय कंटेनर समझने की जगह गैस बाय गैस समझ रहा हूँ, और एक गैस को मैं एक बार में कंसिडर में कर रहा हूँ, एंड देन आई एम कंप्यूटिंग व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर बेस्ड ऑन इट. ठीक है, अगर यही क्वेश्चन थोड़ा और इलैबोरेट होता वेयर इट वुड हैव आस्क्ड मी अबाउट कितने मोल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो फिर आई वुड हैव टेकन द अप्रोच दैट आई टुक इन द लास्ट क्लास. ठीक है, दैट वुड हैव बीन अ मोर डिटेल्ड अप्रोच इन ऑर्डर टू गेट द आंसर. ठीक है, नहीं बिल्कुल भी अभी मैं सेकंड मेथड से नहीं करूंगा, दैट मोल बेस्ड मेथड, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. आई विल चूज दिस मेथड ओवर दैट. आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई करो, ठीक है, आंसर मैच करेगा आपका डेफिनेटली. ठीक है, ये थोड़ा सा अलग अप्रोच से मैंने आपको करके बताया. हाँ, sum of the partial pressure is going to be total pressure ना. That is what Dalton's law of partial pressure was. ठीक है, all right. Now let's understand the next टॉपिक. क्या कह रहे हो पृथ्वीराज, मोल्स यहाँ पर कांस्टेंट है? हाँ तो है ना. मोल्स कांस्टेंट कैसे हैं? मोल्स कांस्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है दैट आई एम सेइंग कि इनिशियल मोल्स जो CO2 के थे वही टोटल मोल्स जो रहेंगे तीनों में स्प्रेड होंगे. दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग एज द मोल्स. अदरवाइज कंटेनर A, B, C इन तीनों कंटेनर में अलग अलग मोल हो सकते हैं ना. हाँ, डीपीपी के डाउट्स मैं आप लोगों के डिस्कस करूंगा थोड़े टाइम बाद. मतलब आई एम नॉट होपिंग कि आप सबने सारी डीपीपीज कर ली होंगी, मल्टीपल डीपीपीज थी. तो अगर आपने कुछ कर लिया है तो ठीक है, अच्छी बात है. हम लोग मे बी नेक्स्ट क्लास में वो डीपीपीज डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, नॉट टुडे. एंड जो बुकलेट के क्वेश्चंस थे उनका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने भेजा है. ठीक है, तो आप एक बार उसमें से देखना, समझना क्या क्या आपके डाउट्स हैं उससे सॉल्व हो रहे हैं. नहीं होंगे तो फिर हम लोग क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे. ठीक है, नाउ आई वांटेड टू यूज टुडेज क्लास का मोस्ट ऑफ द टाइम इन टेकिंग दिस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट which is an important concept, that is Graham's law of rate of diffusion. All right, now अभी तक जो हम डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, इन दैट कॉन्सेप्ट वी वर नॉट बॉदर्ड अबाउट you know how fast or how slow the gases are going from one region to another region. In सब cases में our understanding was that initial एक situation है, ठीक है, and then एक final situation रहेगी. Final situation is after a long time. ठीक है, we give enough time for the gases to move around and ensure that the partial pressure is uniformly present throughout the system. ठीक है, तब तक diffusion होता रहेगा. तो हमने वो अनसेड एक assumption यहाँ पे लिया हुआ था कि ठीक है, final condition is after a long time. However, when we go into the depth of it, तो diffusion finite time ले रहा होगा, right? The gases will be traveling from one region to another region, right? So the rate at which they are traveling is something that can be understood, studied and worked upon. तो उसके लिए what we have with us
इज ग्राम्स लॉ ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, या फिर रेट ऑफ इफ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, इफ्यूजन का एक क्विक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेना। ठीक है, इफ्यूजन इज what you can say, effusion is flow of gases through a small pinhole, ठीक है, from a very small hole। इस तरीके से मैं आपको एक डायग्रामेटिक का इसका डिफरेंस दे देता हूँ, यहाँ पर ऑब्जर्व करना। Right, so you have a gaseous mixture on one side, ठीक है, and then there is a small pinhole जिसके through gases are escaping, ठीक है, this is what is called as effusion। ठीक है, हाँ, तो नाउ यहाँ पर ऑब्जर्व करना, when we talk about Gram's law and try to understand what it talks about in terms of rate of diffusion या rate of effusion, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना। मैं पहले आप लोगों के साथ में रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, डेरिवेशन में नहीं जा रहे हम लोग, पहले सीधे रिजल्ट देखेंगे। R, ठीक है, दैट इज द रेट ऑफ effusion is dependent on certain factors: partial pressure, area of cross section, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द होल जिसके थ्रू ये पास हो रही है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर एज वेल। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज जनरल फॉर्म, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द जनरल फॉर्म ऑफ ग्राम्स लॉ, in which we understand the factors on which rate of effusion depends, right? एक एक करके समझना। P stands for the partial pressure of gas, ठीक है, A stands for cross sectional area of the hole through which the gas is diffusing, ठीक है, M stands for molecular weight of the gas, right, and T stands for temperature, ठीक है। नाउ इसमें अब कुछ इंटरप्रिटेशंस तो इंट्यूटिव भी रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, लाइक सम ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस आर गोइंग टू बी इंट्यूटिव। लेट्स से यहाँ पर अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, दो वेसल्स हैं, इसके अंदर कम गैस है, ठीक है, कम प्रेशर है, और दूसरे वेसल के अंदर ज्यादा पार्शियल प्रेशर है, ज्यादा अमाउंट में गैस भरा हुआ है, ठीक है, देयर इज मोर गैस प्रेजेंट इनसाइड, देयर इज मोर यू कैन से प्रेशर, ठीक है, बाकी सब सेम है, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग होल कर रहे हैं वो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है दोनों केस में, ठीक है, गैस भी दोनों केस में सेम ही है, इसमें मान लो N2 है तो इसमें भी N2 है, टेम्परेचर भी सेम है, बट यहाँ पर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा है। तो इंट्यूटिवली यू अंडरस्टैंड दैट यस, बिकॉज प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में गैस बाहर निकलेगा एज कंपेयर टू जहां पर पार्शियल प्रेशर रिलेटिवली कम था, ठीक है।
डेफिनेटली बाहर से सॉरी अंदर से बाहर तो गैस जाएगा ही सही, वो तो होना ही है, बट जो रेट रहेगा, द स्पीड एट विच द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू कम आउट, ठीक है, कि 1 सेकेंड के अंदर कितने मोल्स डिफ्यूज आउट हो गए, ठीक है, दैट विल बी मच मोर इन केस ऑफ जहां पर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। अगर मान लो आप प्रेशर सेम कर लेते हो दोनों जगह पर, ठीक है, लेट्स से प्रेशर इज सेम ऑन बोथ द साइड्स एंड एक जगह पर होल का साइज बड़ा कर दिया आपने, ठीक है, यहाँ पर दोनों जगह पर मान लो प्रेशर सेम है और एक जगह होल का साइज बड़ा है, तो अगर ज्यादा बड़ा होल होगा तो ज्यादा गैसेस बाहर आ पाएंगी एज कम्पेयर टू जहां पर होल का साइज कम होगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, कि अगर प्रेशर, टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर वेट ये सब सेम है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बड़ा होगा तो ज्यादा गैस डिफ्यूज होगी, ठीक है, राइट। देन अब अगर मान लो व्हाट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू इज कि गैस के टाइप में अंतर है, ठीक है, मान लो पार्शियल प्रेशर सेम है, एरिया सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, ठीक है, बट गैस का टाइप अलग है, यहाँ पर हीलियम है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, सेम पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, यानी कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, सेम टेम्परेचर है, सेम होल का साइज है, तो भी क्या होगा, हीलियम गैस एक्चुअली ज्यादा डिफ्यूज करेगा एज कम्पेयर टू N2 गैस, क्यों, क्योंकि हीलियम गैस लाइटर है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो इट विल come out more in a given amount of time, more amount of helium is going to come out as compared to N2, and when I say amount it is primarily in terms of its moles, ठीक है। देन टेम्परेचर वाला पार्ट जो है, ठीक है, वो आप समझने की कोशिश करना। मान लो दोनों कंटेनर्स में, ठीक है, दोनों कंटेनर्स में सेम ही गैस है, सेम ही क्रॉस सेक्शनल एरिया है, बट अगर दोनों कंटेनर्स का साइज सेम है, ठीक है, और टेम्परेचर अलग अलग है, तो प्रेशर भी अलग अलग होगा, ठीक है। देन यू विल सी दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी डिपेंडेंट ऑन P/√T, और यू कैन से P और द रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, क्योंकि प्रेशर इटसेल्फ खुद टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होगा। कैसा, सेम गैस है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ए और ए तो सेम हो गए, ए और एम, ठीक है। अब सेम ही वेसल है तो वॉल्यूम भी सेम हो गया, तो अगर टेम्परेचर एक जगह का ज्यादा होगा तो वहां का प्रेशर भी ज्यादा ही होगा, बिकॉज प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो इट माइट साउंड अ लिटिल काउंटर इंट्यूटिव जब आप ये डायग्राम सॉरी ये रिलेशनशिप देखते हो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कैसे आ गया, ठीक है, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके दिमाग में डेफिनेटली इंट्यूटिवली तो यही थॉट आ रहा होगा कि अरे टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये और फास्ट मूव करने लग जाएंगे, तो ये तो और जल्दी बाहर निकलेंगे, तो आपका जो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है वो सही है, ठीक है। हाउएवर यहाँ पर व्हेन वी लुक एट द एक्सप्रेशन यू माइट थिंक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, बट एक्चुअली में आप देखोगे तो वो प्रेशर का टर्म ऊपर जो है दैट एक्चुअली मेक्स और गिव्स दैट फॉल्स इल्यूजन और फॉल्स सेंस। एक्चुअली अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आप अपना रेट ऑफ डिफ्यूजन डिस्कस करते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू टेक वॉल्यूम आल्सो देन वो आपको PV = nRT के फॉर्म में ही सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। So that is something which is going to happen if you replace P and T in from the ideal gas equation, तो volume भी as a factor बना सकते हो, but that is rarely taken into account. It is actually the partial pressure, ठीक है, which we are taking along with temperature as the parameter on which rate of diffusion depends, ठीक है। Now इसमें ऐसा simplified assumption लिया हुआ है यश, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना, ये क्वेश्चन में बोला नहीं जाएगा बट ये सिंप्लीफाइड अजम्पशंस आपके लिए लिया होगा दैट दूसरी तरफ वैक्यूम है, ठीक है, ये आपको हर क्वेश्चन में लेकर ही चलना है, ठीक है। अदरवाइज टिपिकली व्हाट यू डू एंड टेक इज द डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, बट कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे आगे
तो उसमें आपको ये दिया हुआ नहीं होगा, बट आपको यही मान के चलना है, ठीक है। नाउ अगर आप मल्टीपल पैरामीटर्स को वेरी कर रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो कि गैस भी अलग अलग है, प्रेशर भी अलग है, टेम्परेचर भी अलग है, तो फिर आपको इन सबको एक साथ लिखना पड़ेगा, एंड देन मैथमेटिकली कौन सा फैक्टर कैसे इफेक्ट करेगा वो आप फिर बता पाओगे। तो ये चीजें मैं अभी एक एक करके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, बट न्यूमेरिकल्स के साथ में डिस्कस करूंगा, बट एक एक करके, ठीक है, धीरे धीरे लेवल ऑफ डिफिकल्टी हम लोग इंक्रीज करेंगे। नाउ यहां पर ऑब्जर्व करना जो रेट ऑफ इफ्यूजन रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे और क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से आंसर करना रहेगा। सो लेट मी ट्राई टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम सॉल्विंग methodology while we are going to do questions based on this Graham's law of effusion. So यहां पर नोटिस करना, based on the language or you can say data given in the question, we work on the left hand side and right hand side, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ये आर हो गया, राइट हैंड साइड ये फैक्टर्स हो गए, ठीक है, फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इफ्यूजन। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में हमें करेक्ट इंटरप्रिटेशन देखना पड़ेगा, that what is going to be the interpretation of rate, how we are going to talk about the rate of effusion, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड में हमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, because not every time we will have to take all these 4 factors into account. So this will completely based upon the data in the question. Now notice करना किस तरीके से ये दोनों चीजें वर्क करती हैं। लेफ्ट हैंड साइड रेट के इंटरप्रिटेशंस कैसे रहते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड और यू कैन से रेट ऑफ इफ्यूजन के इंटरप्रिटेशन कॉमनली क्या क्या रहेंगे। तो यहाँ पर पहला इंटरप्रिटेशन नोटिस करना, पहला इंटरप्रिटेशन इज समथिंग विच इज इन द फॉर्म ऑफ द मोस्ट कॉमन वन, दैट इज मोल्स, ठीक है। रेट इज इक्वल टू मोल्स डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, कितने मोल्स डिफ्यूज हो गए कितने टाइम के अंदर, ठीक है। दिस इज समथिंग which we also kind of represent as delta n by delta t, ठीक है, कितना मोल्स चेंज हो गया, ठीक है। व्हाट इज दिस डेल्टा n, इनिशियल, और in fact change is always written as final minus initial, so let's follow the convention, final moles inside minus जितने इनिशियल मोल्स थे इनसाइड, ठीक है। तो जनरली फिर यहाँ पर ऐसे नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है, बिकॉज रेट इज ऑलवेज रिपोर्टेड एज पॉजिटिव। ये डेल्टा एन क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इनिशियली तो ज्यादा मोल्स थे, फाइनली कम मोल रहेंगे ना अंदर, तो ये नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना पड़ रहा है, ठीक है। वाई, बिकॉज रेट इज ऑलवेज रिपोर्टेड एज पॉजिटिव, ठीक है, कितने मोल्स कितने टाइम में डिफ्यूज हुए, ठीक है। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में मैं बात करूंगा, अभी नहीं, जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा इसके बारे में। अभी डोंट वरी अबाउट द प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज समथिंग व्हिच वी विल कैंसिल आउट एनीवे, ठीक है। दैट इज समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थोड़ा सा आगे जाके। हाँ, सो मोल्स बाहर जाएंगे ना, मोल्स डिफ्यूज्ड आउट,
ये किसके बराबर होगा? द चेंज इन द मोल्स दैट हैपन इनसाइड, राइट? एंड बिकॉज चेंज इज ऑलवेज रिटन एज फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए मैं यहाँ पर ये नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ, ठीक है? देन ऑब्जर्व करना, रेट ऑफ इफ्यूजन कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज चेंज इन, ठीक है, चेंज बोल लो या फिर ड्रॉप बोल लो, change or you can say drop of pressure, partial pressure upon time taken, ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, राइट? बिकॉज अगर कोई गैस डिफ्यूज आउट हो रही है तो अंदर वेसल के उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा, तो यू कैन ऑल्सो call it as delta P by delta T, again with a negative sign, because this is going to be final pressure inside minus initial pressure inside, ठीक है? और you can just take the mod value saying this is the pressure drop that happened in the given amount of time. इस तरीके से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है. Again, that depends on the language of the question. Sometimes, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वेसल में चेंज और वॉल्यूम ऑफ द गैस में चेंज, जिसके टर्म्स में हमें रेट ऑफ इफ्यूजन इंटरप्रेट करना पड़ सकता है. तो यू कैन से वॉल्यूम डिफ्यूज्ड आउट, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन. दिस कैन बी अनदर इंटरप्रिटेशन of rate of diffusion, right? Minus delta V by delta T, right? Again, how do we interpret it? Final volume minus initial volume. इस तरीके से भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. And fourth and final interpretation is actually the literal definition of speed, that is distance traveled अपॉन टाइम टेकन, ठीक है? ये वाला इंटरप्रिटेशन मैं एक एग्जांपल के साथ में बताऊंगा तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा. अभी के लिए जस्ट एक बार नोट कर लो कि हम लोग गैस कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है कितने टाइम के अंदर, दैट इज आल्सो समथिंग दैट कैन बी अंडरस्टूड एज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है? इसका इंटरप्रिटेशन मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा. तो ये कुछ इंटरप्रिटेशंस हो गए लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है? नाउ राइट हैंड साइड के ऊपर, हाँ, आपको समझ में आएगा. थोड़ी देर वेट करो सुमित, अभी क्वेश्चंस में कराऊंगा तब आपको ये चीज ज्यादा बेटर समझ में आएगी. अभी कीप योर डाउट्स, पेशेंस रखो, यू विल अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. राइट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन के बारे में आप ऑब्जर्व करना, ठीक है? ये लेफ्ट हैंड साइड का इंटरप्रिटेशन था. Now let's talk about the right hand side, or you can say factors affecting rate of effusion. इनका simplification, ठीक है? Because not every time you will have to take all the factors in mind. ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यू कैन कम अक्रॉस अ केस जहां पर, ठीक है, टू गैसेस आर इफ्यूजिंग अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया. So in this case, what we can just simply say is that the rate of effusion is only related to the molecular weight of the gas. Okay, that means that rate of effusion is just dependent, because बाकी सब factors same है, तो उसमें it is just dependent on the molecular weight. तो faster gas जो रहेगी उसका molecular weight कम रहेगा, वो ज़्यादा diffuse कर जाएगी. जो हेवियर गैस रहेगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम रहेगा, वो स्लोली डिफ्यूज आउट करेगी.
ठीक है. Now it can also happen, ठीक है, let's say two gases are present. ठीक है, इसको हम लोग फिर कैसे रीड कर सकते हैं? इनफैक्ट लेट मी ट्राई टू इनफैक्ट फर्दर से that rate of effusion of gas 1 upon rate of effusion of gas 2 will be equal to root over molecular weight of gas 2 upon molecular weight of gas 1. ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. नाउ कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज ये सारे प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया ये सब आइडेंटिकल बोले जा रहे हैं इन दोनों गैसेस के लिए. नाउ अगर मान लो सिर्फ टेम्परेचर और क्रॉस सेक्शनल एरिया आइडेंटिकल है, प्रेशर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव टू गैसेस आर present in same vessel but have different moles. तो इससे क्या हो जाएगा? This means their partial pressure will be different. ठीक है, their moles are something which are different, तो उनका partial pressure भी different हो जाएगा. तो मतलब rate of effusion का simplification कैसा रहेगा? राइट हैंड साइड का मैं partial pressure as a factor लूंगा and molecular weight as a factor लूंगा. बाकी क्योंकि वो सेम वेसल में है, सेम होल के थ्रू फ्लो कर रहे हैं, राइट, तो उनका ए एंड टी सेम रहेगा. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द होल वो सेम ही है दोनों के लिए, एंड टेम्परेचर क्योंकि सेम वेसल में प्रेजेंट है तो वो भी सेम ही रहेगा. तो इस केस में अगर मुझे रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस 1 अपॉन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस 2 लिखना रहेगा, तो आई विल राइट P1 by P2 into root over M2 by M1. और आई कैन ऑल्सो replace the partial pressure by their moles also, क्योंकि partial pressure जो है वो moles के directly proportional रहेगा. ठीक है, so I can take, instead of taking the ratio of their partial pressure, I can take the ratio of their moles also. This will be another simplification. ठीक है, यही दो कॉमन सिंप्लीफिकेशन रहते हैं. अगर ये सिंप्लीफिकेशन नहीं रहेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको ये चारों फैक्टर्स को ध्यान में रखना ही पड़ेगा. ठीक है, तो किस तरीके से अब यहाँ पर इनको यूज करा जाएगा ये आप ध्यान से ऑब्जर्व करना. दिस इज समथिंग जो मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया, ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच समझा दिया है, विच इज काइंड ऑफ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू ग्रास्प इन वन गो. ठीक है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि एक साथ काफी सारा इंफॉर्मेशन आ गया है, बट अब हम इस पूरी इंफॉर्मेशन को रिकैप करेंगे बाय टेकिंग क्वेश्चंस. ठीक है, ये जो पूरा मैंने यहाँ पे बताया है रेट ऑफ इफ्यूजन, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे हर क्वेश्चन में और यही अप्रोच लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है, बाय टेकिंग क्वेश्चंस. ठीक है, तो एक एक करके आपको मैं समझाऊंगा. ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपके डाउट्स अपने आप धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल. ठीक है, दिस इज समथिंग जहां पे आप लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना. ठीक है, लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने की कोशिश करना, एंड यू विल बी देन इन अ मच बेटर पोजीशन टू आंसर सच क्वेश्चंस. ठीक है, ऑलराइट, सो let's take this first question. Now इसको पहले एक बार रीड करो. अच्छे से समझ लो.
ना अब आपने एक बार इसको रीड कर लिया क्वेश्चन को, ठीक है, अब अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच किस तरीके से रहेगा यहाँ पे आप नोटिस करना। सो अपना स्टार्टिंग पॉइंट विल बी दिस, द जनरल फॉर्म ऑफ ग्राम्स लॉ, ठीक है, दैट रेट ऑफ एफ्यूजन इज डिपेंडेंट ऑन दीज फैक्टर्स। नाउ we'll work on both the sides, left hand side and right hand side, one by one. Now left hand side का interpretation अब मैं कौन सा लूंगा out of the four that I had talked about? Moles, pressure, volume, distance, कौन सा वाला लेना चाहिए? By reading the language of the question you understood कि ml effused के बारे में पूछा जा रहा है, right? So this means I will take volume वाला interpretation, ठीक है। सो यहाँ पर आई विल राइट दिस एज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ठीक है। एंड मॉड साइन के साथ में चलते हैं, अभी नेगेटिव साइन को छोड़ो। जस्ट द डेल्टा वी हियर रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम इफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। दिस इज वॉल्यूम इफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। नाउ राइट हैंड साइड का इंटरप्रिटेशन नोटिस करना। राइट हैंड साइड के लिए अभी यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है? आइडेंटिकल कंडीशंस, दो गैसेज हैं और उनके लिए सब आइडेंटिकल कंडीशन बोला जा रहा है और कुछ डिफरेंस दिया नहीं जा रहा है। तो आई विल जस्ट सिंपली सिंप्लीफाई, ठीक है। राइट हैंड साइड का मेरा सिंप्लीफिकेशन ये होगा दैट बोला जा रहा है आइडेंटिकल कंडीशंस है, तो मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया सब सेम हो गया। इट इज ओनली द टाइप ऑफ गैस विच इज डिफरिंग, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूलर वेट डिफर करेगा, राइट। सो नाउ आफ्टर दिस सिंप्लीफिकेशन आई कैन राइट डेल्टा वी बाय डेल्टा टी H2 गैस का, ठीक है, upon delta V by delta T of whatever the gas that we are going to talk about is going to be equal to square root of molecular weight of gas upon molecular weight of H2, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है x ml डिफ्यूज हो रहा है कितने टाइम के अंदर? 5 सेकेंड्स के अंदर फॉर H2 गैस, एंड बोला जा रहा है दैट टाइम टेकन फॉर द सेम वॉल्यूम x ml डिफ्यूज करना है, ठीक है। इसका कितना टाइम लगेगा विल बी इक्वल टू molecular weight of the gas upon molecular weight of H2 which is equal to 2. तो ये x कट जाएगा। Now you go option by option to check ये किस सिचुएशन में सेटिस्फाई होगा, ठीक है। Go option by option to check LHS is equal to RHS, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 10 सेकेंड डालोगे और मॉलिक्यूलर वेट हीलियम का 4 डाल दोगे तो ये नहीं मैच करेगा, ठीक है। O2 आप डालोगे 20 डालोगे 20/5, तो ये 4 आएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर 32/2 16 का स्क्वायर रूट 4, ये मैच कर जाएगा। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये समझ में आया? एक बार मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। इस क्वेश्चन के डाउट मैं क्लियर करना चाहूंगा इन केस यू आर स्टक समवेयर, ठीक है। बाकी और जो इंटरप्रिटेशन है उनके ऊपर और क्वेश्चन में कराऊंगा आपको एक एक करके, बट इसमें हाँ कहीं पे अटक रहे हो तो लेट मी नो। ऑफ कोर्स विदाउट ऑप्शन आंसर नहीं आएगा ना यहाँ पे, मतलब लाइक देयर आर 2 अननोन्स, या तो फिर आपको एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए था तो फिर आप बता पाओगे, ठीक है। आएंगे वैसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, अभी आप देखोगे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। हाँ लैंग्वेज पढ़ो ना क्वेश्चन की। सेम वॉल्यूम ऑफ गैस, टाइम टेकन फॉर इफ्यूजन ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ गैस। ऑलराइट, चलो ठीक है। ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है।
All right, so let's take this as a question. So इसमें आप ऑब्जर्व करोगे, अब सेम अप्रोच से जाना है. ऑल राइट, पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं भी आप लोगों को हेल्प करूंगा कैसे करना है. गो विद द सेम अप्रोच जैसा मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले करके बताया था. हाँ, राइट सुमित, राइट हार्दिक. सुनीत का भी आंसर सही है. नहीं शिवांक, आपने कुछ गड़बड़ कर दी, देखो एक बार क्या गड़बड़ करी. राइट हर्ष, राइट प्रथमेश, राइट सुबोध. So the correct answer here will be option C. हाँ, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है. कैसे करेंगे? वापस से वही सेम थॉट प्रोसेस हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे. राइट, दैट रेट ऑफ इफ्यूजन का जनरल इंटरप्रिटेशन इस तरीके से है. ठीक है, अब आप वापस से ऑब्जर्व करना लेफ्ट हैंड साइड का इंटरप्रिटेशन और राइट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे? यहां पर आपको दिख रहा है मोल्स के बारे में बात हो रही है, तो आई विल सिंपली इंटरप्रेट द रेट एज मोल्स डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन कैसा रहेगा? यहाँ पे अगेन आप नोटिस करोगे तो आपको प्रेशर के बारे में क्या कुछ बोला जा रहा है, टेम्परेचर के बारे में कुछ बोला जा रहा है, होल के बारे में भी नहीं बोला जा रहा कि कोई अलग अलग होल से बोला जा रहा है. तो यहाँ पर नथिंग इज मेंशन्ड. इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग अब अपनी लाइफ को सिंपल बनाएंगे और सिंपली टू टाइप की गैसेस हैं, तो उनके लिए जस्ट मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस लेंगे. बाकी प्रेशर, टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शनल एरिया सबको सेम मानेंगे. ठीक है, तो इफ नथिंग इज मेंशन्ड वी विल कंसिडर दैट आइडेंटिकल कंडीशंस ही. ठीक है, अदरवाइज विल गेट स्टक. ठीक है, और कुछ बोला ही नहीं है ना. सेम नंबर ऑफ मोल्स बोला जा रहा है, थ्रू द सेम ओपनिंग बोला जा रहा है. सेम ओपनिंग बोल दिया तो चलो कम से कम क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम ही है. ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर के बारे में भी कुछ नहीं बोला, टेम्परेचर के बारे में भी कुछ नहीं बोला, तो ठीक है हम लोग उन सबको सेम ही मान लेंगे. तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा एन बाई डेल्टा टी ऑफ SO2 अपॉन डेल्टा एन बाई डेल्टा टी ऑफ द नोन गैस इज इक्वल टू रूट ओवर molecular weight of gas upon molecular weight of SO2. राइट, सो ये सेम मोल्स हैं. ठीक है, SO2 के 20 सेकेंड्स में जाएंगे एंड सेम मोल्स दूसरी गैस के 60 सेकेंड्स में इफ्यूज आउट होंगे, है ना. ये डेटा दिया हुआ है, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 विच इज 64. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस आ जाएगा 64 इंटू स्क्वायर रूट और स्क्वायर ऑफ 60 बाय
20, which is what C option is. ठीक है, मैं एक बार जूम आउट कर लेता हूँ. अगेन लेट मी नो इफ यू गॉट स्टक इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए. नहीं, यहाँ पे ये थोड़ा बोला है यश कि अंदर सेम मोल्स है. व्हाट दे आर सेइंग इज दैट द सेम मोल्स आर डिफ्यूजिंग आउट. हो सकता है ना कि अंदर अलग अलग मोल्स हो. दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. वो तो बोला ही नहीं है, तो अब कुछ दिया नहीं इन्फॉर्मेशन तो. ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, रुको. ऑलराइट. ये वाला क्वेश्चन करते हैं, रुको एक मिनट. कहाँ गया वो? जस्ट अ सेकंड. हम्म. थोड़ा सा डायग्राम देकर भी मैं आपको हेल्प कर देता हूँ. ट्राई करो अब इसको.
ऑल राइट, हाँ मतलब ऑलमोस्ट 60 सेंटीमीटर, या ऑलमोस्ट 60 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर. सुमित, यश और ऋग्वेद और प्रथमेश, राइट. हाँ राइट सुबोध. तो इसमें कैसा रहेगा, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना. अगेन वी स्टार्ट विद द सेम पॉइंट, ठीक है, दैट आर इज proportional to PA by root TM, ठीक है. अब यहाँ पे नोटिस करना, what will be my interpretation of left hand side. Distance traveled upon time taken, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ कितना गैस डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये कंपेयर करा जा रहा है, ठीक है. जो लाइटर गैस है ऑफ कोर्स वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो इंट्यूटिवली यू वुड हैव मेड अ गैस कि एक्स का वैल्यू 50 से तो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि अमोनिया का मोलिकुलर वेट 17 है और HCl का 36.5 है, तो ये अमोनिया ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करेगा. एंड दिस पॉइंट जहाँ पर ये दोनों गैस मीट करेंगी दैट विल बी क्लोजर टू HCl देन NH3, ठीक है. राइट हैंड साइड पर आई विल जस्ट टेक स्क्वायर रूट ऑफ molecular weight because PTA are given in the question as to be same, ठीक है. क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पर है and through the same kind of pinhole they are being injected, so the area is also same. So what we will have here is that delta X by delta T of ammonia gas upon delta X by delta T of HCl is equal to root over molecular weight of HCl upon molecular weight of NH3, right. Now distance traveled by ammonia X बोला जा रहा है, टाइम टेकन मान लो T होगा, देन डिस्टेंस ट्रैवल बाय HCl कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल ट्यूब की लेंथ 1 मीटर ही है, ठीक है. एंड टाइम टेकन भी सेम ही रहेगा ना, बिकॉज दे आर रिलीज साइमल्टेनियसली, gases are released simultaneously. So what it means is that time taken to reach the meeting point is same. राइट, तो ये दोनों के केस में टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी रूट ओवर 36.5 अपॉन 17, ठीक है. थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेशन नहीं है, बट यस वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज 0.6 मीटर्स, ठीक है. अगर आप 100 में लोगे यहाँ पर सेंटीमीटर में आ जाएगा एक्स का वैल्यू, ठीक है. तो यू डिपेंडिंग अपॉन क्या आप यूनिट ले रहे हो अकॉर्डिंगली आपका आंसर उसी यूनिट में आ जाएगा, ठीक है. बट दिस वाज अनदर क्वेश्चन in which the interpretation of the rate of effusion was to be carefully taken. ठीक है, ऑल राइट. चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे. ठीक है, इस टाइम थोड़ा केयरफुल होके ट्राई करना. लेट्स सी इफ यू आर एबल टू गेट द कैच इन द क्वेश्चन. ऑल राइट, ट्राई करो. थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ.
इसको मोल बोल देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ट्राई करो। ऑलराइट, काफी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर्स दिए हैं और काफी वैरायटी ऑफ आंसर्स मिले हैं। ऑलराइट, चेक कर लेते हैं, चलो। क्या आंसर रहेगा यहाँ पर। नाउ यहाँ पर अब केयरफुली नोटिस करना, ठीक है। मोल्स कमिंग, मोल्स दिए हुए हैं, मिक्सचर ऑफ H2 एंड O2, इनसाइड क्या मोल्स में है, ठीक है, एंड दे आर डिफ्यूजिंग आउट थ्रू अ पोरस पार्टीशन, ठीक है। थोड़ा सा विजुलाइज कर लो इसको। तो यू हैव अ वेसल, ठीक है, इसके अंदर यू हैव H2 गैस, ठीक है, एंड यू हैव O2 गैस, ठीक है, एंड there is a hole that has been made. So what you can see is that the A and T are same, ठीक है। However, because moles are different, ठीक है, जो composition है वो 2:1 का दिया हुआ है, moles are different, it means that the partial pressure is also going to be different, ठीक है, because moles are different implies the partial pressure is different for both the gases. तो यहाँ पर जब हम लोग राइट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इट विल बी P/√m, ठीक है, एंड लेफ्ट हैंड साइड का इंटरप्रिटेशन विल बी डेल्टा n बाय डेल्टा t, वेयर डेल्टा n will be moles diffused upon time taken. So if I take the ratio of the two, delta n by delta t of H2
upon delta N by delta T of O2, right, is equal to partial pressure of H2 upon partial pressure of O2 into square root of molecular weight of O2 upon molecular weight of H2. Now, this partial pressure का ratio is equal to their moles का ratio, right? Because partial pressure and moles are directly proportional to each other, given the temperature, volume is same. ठीक है, सेम ही वेसल के अंदर प्रेजेंट है ये, तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम सेम ही है दोनों का. एंड मोलिकुलर वेट तो हमको पता ही है. नाउ डेल्टा एन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा एन ऑफ O2, राइट, बिकॉज ये सेम टाइम में ही एफ्यूज आउट हो रहे होंगे. ठीक है, what is being asked यहाँ पे नोटिस करना, what is being asked is the composition of the gases which are coming out. ठीक है, this is what is under discussion कि इनिशियली कितने गैसेस, जो गैसेस इफ्यूज आउट हो रहे हैं उनका कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, राइट. सो दिस विल बी इक्वल टू 2/1, है ना, 2:1 का मोल्स का रेशियो है, इंटू रूट ओवर 32/2, तो ये आपका 8:1 का रेशियो आ जाएगा. दैट इज सी ऑप्शन. ठीक है, तो इसमें नॉट जस्ट दैट H2 इज लाइटर, इवन H2 के का पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा है, that is making more moles of H2 come out as compared to O2. ठीक है, तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के अलग अलग आंसर थे, तो विल टेक अ मोमेंट, नोटिस करना आपने क्या गलती करी, क्या गड़बड़ करी. ठीक है, हो सके तो अंडरस्टैंड और क्लैरिफाई व्हाट काइंड ऑफ केयरलेस मिस्टेक यू मेड, एंड देन वी कैन डिस्कस. ठीक है, ऑलराइट. नहीं, आंसर डिफरेंट नहीं आता, वॉल्यूम से भी करते तब भी सेम ही रहता. इट्स जस्ट दैट मोल्स में थोड़ा इजियर रहता है इंटरप्रिटेशन, इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में मोल्स करके रख के दिया आपको. ठीक है, काइंड ऑफ मेक्स इट अ स्लाइटली इजियर प्रॉब्लम टू वर्क विद. ठीक है, बाकी आंसर तो सेम ही आता, वॉल्यूम से भी जाते तो वही रहता. ठीक है, अब इसमें नोटिस करना, कैन एनीबॉडी हेल्प मी इंटरप्रेट बाय दिस इनिशियली वर्ड was used in the question, what was the need for it to be used. नहीं भी यूज करते तो क्या दिक्कत थी.
हाँ राइट पूर्णा, राइट हर्ष। नहीं यश, नॉट एग्जैक्टली दैट रीजन। हाँ राइट पृथ्वीराज। फिर क्या होता अगर हम लोग लंबे टाइम के लिए लेते तो ये 2:1 चेंज हो जाता ना। ये जो 2:1 हमने लिया, if I would have taken it after a long time, मतलब सब significant time, then ये 2:1 change हो चुका होता. It would have not been this initial composition. Right? That is why this initially word was used. तो मैं इसको यहाँ पर आपको highlight करके लिखने के लिए भी बोलूँगा. ठीक है, यहाँ पे note करना. Initially, ठीक है, used in the question ensures that partial pressure of H2 to partial pressure of O2, which can be also written as, is very close to 2:1 only. इसमें हार्डली कुछ चेंज हुआ, अदरवाइज ये कंटिन्यूअसली चेंज हो जाता रेशियो. नाउ इसी चीज को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है, इसी चीज को और थोड़ा डेप्थ में जाके समझने के लिए, लेट मी काइंड ऑफ टेक अ क्वेश्चन एंड इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ. ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ एंड आई विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस rate of diffusion. ठीक है, तो what is the इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिफ्यूजन? आप लोगों ने फिजिक्स में ये चीज अब समझ ली होगी वैसे तो. ठीक है, जब हम लोग रेट का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इसके हम लोग दो इंटरप्रिटेशन के बारे में बात कर सकते हैं. एक तो एवरेज रेट रहेगा, ठीक है, विच कैन बी समथिंग दैट कैन बी रिटन एज डेल्टा एन बाय डेल्टा टी. ठीक है, एंड देयर कैन बी समथिंग विच इज इंस्टेंटेनियस rate as well, which is written as dn by dt. हम लोग कैलकुलस का यूज करेंगे. Now what happens is that this average rate का interpretation is good for doing approximated calculations. ठीक है, बट अगर आपको accurate results चाहिए, ठीक है, accurate results require instantaneous rate to be used while solving questions. ठीक है, अगर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों सिमिलर से आंसर दे देंगे. ठीक है, बट अगर लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, तो उसके लिए एक्यूरेट रिजल्ट्स लाना, ठीक है, फॉर अ लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन, एक्यूरेट रिजल्ट्स, उसमें इंस्टेंटेनियस रेट हम लोग यूज करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे. ठीक है, किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैड द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन. लेट्स से इस तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. सो इनिशियल मोल्स, ठीक है, ऑफ H2 मान लेते हैं 2 है. ठीक है, एंड इनिशियल मोल्स ऑफ O2 मान लेते हैं 1 है. ठीक है, इनसाइड द वेसल. ठीक है, नाउ यहां पर ऑब्जर्व करना. ठीक है, आफ्टर 10 seconds moles of H2 inside, or in fact moles of H2 inside
is equal to say 0.25 है, ठीक है। Then what will be the moles of O2 inside, ठीक है। मान लो ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करूंगा, एक तो एवरेज रेट वाला तरीका और एक इंस्टेंटेनियस रेट वाला तरीका, एंड दोनों से अलग अलग आंसर आएगा। एंड इंस्टेंटेनियस रेट वाला एक्चुअली ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा करेक्ट आंसर होगा एज कंपेयर टू द एवरेज रेट। मैं समझाऊंगा, एक बार मुझे सॉल्व करने दो। मैं अभी आपको सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप लोग सॉल्व मत करो अभी, अभी यहाँ पे ध्यान से फोकस करो। यहां पर नोटिस करना, अभी मैं एवरेज रेट का इंटरप्रिटेशन यूज कर दूंगा। तो ये एवरेज रेट का इंटरप्रिटेशन क्या कह रहा है, दैट रेट इज इक्वल टू डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, ठीक है, विच इज प्रोपोर्शनल टू एन बाय रूट एम, ठीक है। पी बाय रूट एम था, विच आई कैन ऑल्सो राइट एज डेल्टा एन बाय डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एन बाय रूट एम, ठीक है। अरे एक मिनट, हाँ। सो अगर मैं यहाँ पर डेल्टा एन बाय डेल्टा टी ऑफ H2 गैस ले लूँ अपॉन डेल्टा एन बाय डेल्टा टी ऑफ O2 गैस ले लूँ, तो इट विल बी मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ O2 into रूट ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2, राइट। कितने मोल्स डिफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर N2 के, ठीक है। वैसे तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देना चाहिए क्योंकि चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितने मोल्स हैं H2 के इनसाइड 0.25 और इनिशियल कितने थे 2 मोल्स डिवाइड बाय टाइम टेकन t, ठीक है। ऑक्सीजन के फाइनल मोल्स कितने होंगे वो हमें निकालना है, ठीक है। इनिशियल मोल 1 थे, टाइम टेकन सेम रहेगा, एंड मोल्स का रेशियो कितना था, ये 2 था, ये 1 था, इंटू रूट ओवर 32/2, तो ये टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। दिस विल बी, यू कैन से 1.75 upon question mark -1, or you can say 1 minus question mark actually is equal to 8, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर लोगे तो इससे आपको आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है, दैट ये 0.78 मोल्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.78125 है, बट ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पार्ट समझ में आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? दिस इज समथिंग विच इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैड जस्ट डन इन द ऊपर वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आप नोटिस करना what is that we are going to do with instantaneous rate. Instantaneous rate में actually we are going to take into account the fact that moles are changing. अगर मोल्स चेंज हो रहे हैं तो रेट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर नोटिस करना रेट which is equal to minus dn by dt is proportional to p by root m,
ठीक है, और यू कैन से माइनस dn by dt इज इक्वल टू k इंटू n by रूट n. ठीक है, k इज सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ठीक है, k is some proportionality constant. Proportionality constant है. Now dn by n, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो n का टर्म एक तरफ और t का टर्म दूसरी तरफ, एंड फिर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा. टाइम 0 पर इनिशियली कुछ n नॉट मोल्स होंगे, टाइम t पर कुछ n t मोल्स होंगे. तो 1 by n का इंटीग्रल हो जाएगा ln. ठीक है, तो ln nt by n नॉट हो जाएगा when I take the limits, and ये माइनस dt का इंटीग्रल तो t हो जाएगा अपॉन रूट n. ठीक है, ये माइनस साइन को मैं इधर अंदर ले लूंगा तो ये ln n नॉट by nt is equal to kt by root n. This will be my interpretation coming from the instantaneous rate. This will be my result talking about how the moles are going to change because the rate changes with moles itself. ठीक है, moles change होंगे तो rate भी change होगा. यहाँ पे मैंने क्या assume कर लिया है कि ये जो moles हैं ये मैंने 2:1 ही assume कर लिए हैं. ठीक है, एंड में भी मैं मतलब इनको 2:1 ही लेके चल रहा हूँ, जबकि ये मोल्स टाइम के साथ में चेंज होते जा रहे हैं. So that is the kind of flaw that is there with the average rate calculation, but this is going to provide you far more accurate results. तो यहाँ पे आप नोटिस करना, अगर मैं ये H2 के लिए आप लिखूंगा तो उसके इनिशियल मोल्स 2 थे और फाइनल मोल्स कितने हैं 0.25. ठीक है, एंड ये कितने टाइम के अंदर 10 सेकेंड्स के अंदर हुआ. तो यही चीज O2 के लिए रहेगा. इनिशियल मोल 1 है, फाइनल मोल आपको निकालना है. ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 रहेगा एंड टाइम तो सेम 10 सेकेंड्स ही बोला जा रहा है. तो नाउ व्हेंस यू डिवाइड दीज टू, ठीक है, के कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहां से जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी अ मच मोर एक्यूरेट आंसर. ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कोर्स सेम ही रहेगा. इससे आप सॉल्व करके बताओ मुझे एक बार क्या आंसर आ रहा है. ln 2 by 2.25, 2 by 0.25, sorry, 8 ln 8 into 10 by 32. जीरो 0.59 या 0.6 मान लो आप, लगभग 0.6. दैट इज द एक्चुअली द करेक्ट आंसर. इसको आप सॉल्व कर लेना, मैंने तो कैलकुलेटर यूज करा फटाफट सॉल्व करने के लिए. बट हाँ, दिस इज व्हाट द करेक्ट आंसर वुड बी. डिवाइड करा ना ताकि के कैंसिल आउट हो जाएगा. अदरवाइज आप फिर यहाँ से के को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, ऊपर से के निकाल के नीचे सब्स्टिट्यूट करो, वो भी कर सकते हो. ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज स्ट्रिक्टली एडवांस्ड मटेरियल. ये मेंस वगैरह में नहीं पूछा जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में. ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज मेंस का डिस्कशन. तो ये मैंने आपको बता तो दिया है, बट दिस इज ओनली एंड ओनली टू बी यूज्ड व्हेन स्पेसिफाइड इन क्वेश्चंस. अदरवाइज आप मत यूज करना. अदरवाइज यू गो विद द एवरेज. ये वाला इंटरप्रिटेशन आप करना और आपके आंसर्स मैच करने लगेंगे, बिकॉज क्वेश्चंस में यही आपसे एक्सपेक्ट करा जाएगा. ये इंस्टेंटेनियस वाला एक्सपेक्टेशन जब ही रखना जब आपसे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला जाए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंडिंग अपॉन द मोल्स, इट इज चेंजिंग विद टाइम. तो आप फिर
इंस्टेंटेनियस वाला इंटरप्रिटेशन देना। ऑलराइट, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप जो मैंने पुराना होमवर्क दिया था उसके ऊपर फोकस करो, इंश्योर दैट डीपीपीज एंड ऑल आप कंप्लीट कर रहे हो। फिर मैं इसके आगे का और पढ़ाकर इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको करने के लिए बोलूंगा। ठीक है, ऑलराइट, कुछ डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? अदरवाइज विल क्लोज टुडेस डिस्कशन। ऑलराइट, चलो, हाँ बोलो पृथ्वीराज। सर हाँ बोलो। सर सर आपने प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन कराया था सर एकदम एंड में। हाँ, सर सर मैंने उसका कैलकुलेशन से 2 बार चेक किया सर। आप आंसर 2/5 पी आ रहा था सर, मुझे 3/5 पी आ रहा है सर, मैंने चेक किया। कौन सा वाला क्वेश्चन? यस सर, यही। ये वाला? यस सर। क्या दिया था इसमें? सर कि वॉल्यूम 2V है, 3T है, NA NB। सर मुझे एन और एन बी की वैल्यूज ऑपोजिट है, एग्जैक्ट ऑपोजिट। अच्छा, ये यस सर। अच्छा हाँ ठीक है, एक्चुअली मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। ये Na+NB एन और Na3/2 NB है, राइट? यस सर। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। ये 3/5 होगा, ये 2/5 होगा, यस सर। ये 3/5 आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट। थैंक यू सर। ऑल राइट, थैंक्स पृथ्वीराज। ऑल राइट, ठीक है, चलो, let me close today's lecture. Thank you guys, take care, good night, bye bye.